Okay, so good evening, everyone. Today we will continue our discussion on polynomials. This is perhaps lecture number 3. So we have discussed lot of things about polynomials. We started with the recapitulation. इस 8th class का discussion किया था बहुत सारा. Then we learnt about the like and unlike terms. We learnt about the degrees. Then we learnt about the constant, variable, coefficient, algebraic expression, equation, degree of an expression. Everything we learned. Then we learnt about identification of the polynomials. Further, what happened? We learnt about the degree of the polynomial. Then we learnt about the classification of the polynomial on the basis of degree. So it was 0 degree, linear polynomial, quadratic polynomial, cubic polynomial, biquadratic polynomial, etc. Then we learnt about based upon the number of terms, the classification based upon the number of terms. Further, what happened? We learnt about the operation of the polynomials, addition, subtraction, multiplication, and division. In division, we also learnt about the division algorithm that we are reading from class, that we are algorithm हम लोग division algorithm the formula for division, the funda for division that we know from our initial childhood. Then we learnt about the value of a polynomial, what is the value of a polynomial, what is a zero or a root of a polynomial. Then we learnt about some questions we did. Now we did various questions here. In questions को अपन ने किया था. Then what happened is we did about the questions. We also learnt about we we did various questions that day. Then what happened? We continued our journey to algebraic identities. We learnt about algebraic identities. Okay. So there were some 9 algebraic identities that we did. And then what happened? We solved some of the questions. I told you that we have completed some 60% of the syllabus. So you should start solving the questions. Now, we had discussed these questions कि यहाँ पे ये था, यहाँ पे ये था. Then I calculated some squares also. Then we calculated these values. Then what happened? We calculated, okay, this question was left. This question was left that I have left it to Yes, you. sir. That I have left it to you. So you have to basically what you have to do is you have to prove that a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus ca is equal to half of this. Please try this question and let me know if you can do this question or not. नहीं हुआ वो भी. See, the question is I have to prove left hand side is equal to right hand side. हमने ये पढ़ा था 9th 8th क्लास में. हमने ये पढ़ा था कि हम किसी भी इक्वेशन में, see this is an example of equation because I'm this polynomial is equated to this polynomial, right? So what I can do is further हमने ये भी पढ़ा था कि हम किसी polynomial में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई एट द सेम टाइम सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं. द आइडिया बिहाइंड दैट इज माय वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल शुड नॉट चेंज. अब मेरा जो लेफ्ट हैंड साइड है, माय लेफ्ट हैंड साइड इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है. मैंने क्या किया? मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया. मुझे क्या मिला? मुझे मिला 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca एंड दिस होल इज डिवाइडेड बाय 2. अब मैं क्या करूंगा सर, देखना ध्यान से. ये जो 2a स्क्वायर है इसको मैं a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर लिखूंगा. 2b स्क्वायर को मैं b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिखूंगा और 2c स्क्वायर को मैं c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर लिखूंगा. अब देखो क्या होता है. a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस ऑफ b स्क्वायर माइनस 2bc प्लस c स्क्वायर प्लस ऑफ c स्क्वायर माइनस 2ca प्लस a स्क्वायर. क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? ध्यान से देखो इस एक्सप्रेशन को Yes, sir. एंड से यस और नो. एनीबडी हु इज हैविंग एनी Yes, डाउट sir. प्लीज आस्क. मैंने क्या किया? So we just use the identity.
मैंने क्या किया, मैंने ए 2a² को a² प्लस a² लिख दिया। एक a² ये वाला हो गया, एक a² ये वाला हो गया। b² को 2b² को मैंने b² प्लस b² लिख दिया। 2c² को मैंने सर c² प्लस c² लिख दिया। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं किया। लेकिन अब मैं थोड़ा सा रॉकेट साइंस करने वाला हूं। देखो जरा ध्यान से, ये क्या है, ये a माइनस बी होल a स्क्वायर। minus b the whole square. ये क्या है, ये b माइनस सी होल स्क्वायर है। ये क्या है, ये c माइनस ए होल स्क्वायर है। सो फाइनली माय एक्सप्रेशन विल बिकम हाफ ऑफ a minus b whole Sir, square LHS is equal to RHS, hence proved. plus b minus c whole square plus of c minus a whole square, LHS equal to RHS, hence proved। ठीक है। अब अगर आपसे, अब यहाँ पे एक मिनट बेटा, एक मिनट, लेट मी एक्सप्लेन। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दो तीन चीजें हैं जो आपको समझने की जरूरत है। अगर कोई आपसे पूछे कि इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, मिनिमम वैल्यू मींस द लीस्ट वैल्यू दैट इट दिस एक्सप्रेशन कैन टेक, द आंसर विल बी इक्वल टू 0। क्यों? क्यों समझने की कोशिश करना, क्यों? बिकॉज सर a माइनस बी का होल स्क्वायर है, या तो सर ये 0 होगा या तो 0 से ज्यादा होगा, निगेटिव तो कभी नहीं हो सकता। भाई ये जो ध्यान से समझना जो बता रहा हूं, आई एम टेलिंग यू समथिंग दैट इज नॉट रिटन इन द बुक्स। a माइनस बी का होल स्क्वायर है सर, तो ये जो a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, या तो सर ये 0 होगा या फिर ये कोई पॉजिटिव नंबर होगा, निगेटिव तो नहीं हो सकता, क्योंकि हम 8th स्टैंडर्ड में पढ़ के आए हैं कि किसी भी नंबर का स्क्वायर निगेटिव नहीं होता है। सिमिलरली सर इसकी जो वैल्यू होगी या तो 0 होगी या तो पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव में कुछ भी हो सकती है, मैं नहीं बता सकता। इसकी जो वैल्यू होगी सर या तो 0 होगी या तो पॉजिटिव होगी। जब मिनिमम वैल्यू पूछ रहे हैं, तीन नंबर्स को ऐड किया, तीनों की और उस प्रोडक्ट, उस सम का अगर मैं मिनिमम वैल्यू पूछ रहा हूं, तो मुझे ये पता है जब मिनिमम वैल्यू कब होगी, जब तीनों नंबर्स मिनिमम होंगे। सो द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस सम, if I am representing it by sum, so Will be S 0. minimum will be equal to half of 0 plus 0 plus 0, which is equal to 0. So the minimum value of this expression will be 0. ठीक है, ये एक चीज थी that I wanted. If it was a minus b square minus b minus c, then it would बेटा be infinite. माइनस होता फिर कुछ और सोचते, वहां पे कुछ और सोचते। इस एक्सप्रेशन की बात करो। देखो जो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, हम उसका कोई जनरल क्राइटेरिया नहीं बना सकते। हमें उन क्वेश्चंस को क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन देखना पड़ता है। सो हियर द मिनिमम वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन विल बी 0। चलिए, somebody was asking something. Yes Sir, how did the half come? Sir, there was a minus b whole square, then a plus b minus c whole square, plus c minus a whole square. Sir, then 1/2, how बेटा 1/2 come? 1/2 ऐसे आया था जब मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया था ना इस एक्सप्रेशन को, at the same time I Yes, had sir. divided this expression by 2 also, because I cannot change the value of the expression. अगर मैं किसी एक्सप्रेशन में किसी टर्म से मल्टीप्लाई करता हूं, तो मुझे उस एक्सप्रेशन में उसी टर्म से डिवाइड भी करना पड़ता है। अगर मैं किसी एक्सप्रेशन में किसी नंबर को ऐड करता हूं, तो उसी नंबर से सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ता है। अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं, तो उस नंबर से डिवाइड भी करना पड़ता है। अगर किसी नंबर से डिवाइड करता हूं, तो उसी नंबर से मल्टीप्लाई भी करना पड़ता है। ठीक है, इसीलिए वो हाफ आया। चलिए आगे चलिए। Question: If a plus b plus c equal to 9, you have to find the value, and ab plus bc plus ca equal to 23, you have to find the value of a square plus b square plus c square. Sir, the answer will be 35. Answer will be 35. Yes, sir. Sure? Yes, sir. 100% sure. सोच लो, गलत मत बताना। Sir, सही है. पक्का? Yes, sir. चलो ठीक है, मान लिया आपकी बात कि सर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 9, ए बी प्लस बी सी प्लस सी इक्वल टू 23, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू बता दीजिए।
तो सर हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2 टाइम्स ऑफ ab प्लस bc प्लस ca। ठीक है, इसका होल स्क्वायर कितना, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी दी हुई है, 9 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 23, सॉल्व कर लो, आंसर विल बी 35। वेरी गुड, वेरी गुड। 35 ही होगा ना, 45 तो नहीं होगा, नहीं होगा, 35 ही होगा। चलो नो सर 35 नेक्स्ट, नेक्स्ट क्यूब के फॉर्मूले हैं। आई एम लीविंग द क्वेश्चन, यू हैव टू ट्राई द क्वेश्चन ऑन योर ओन। a माइनस बी होल क्यूब का a माइनस बी होल क्यूब करना है, a प्लस बी होल क्यूब करना है, you guys can do it on your own. I am leaving this question. Okay, this question, 3x plus 4 whole cube minus of 3x minus 4 whole cube, जल्दी से, जल्दी से, या तो फर्स्ट पार्ट बताऊंगा या तो सेकंड पार्ट बताऊंगा, कौन सा पार्ट बताऊं आप लोग डिसाइड करो। सेकंड पार्ट Second. बता दो, चलो सर सेकंड पार्ट। दोनों का सर दोनों का बताने की जरूरत नहीं है वही तो बोल रहा हूं, या तो फर्स्ट बताऊंगा या तो सेकंड बताऊंगा, कौन सा बताऊं। सर, कोई भी नहीं सर, Sir, नहीं। second. दोनों इसके हैं ठीक है, चलो चलो चलो, ठीक है, चलो सेकंड बता देता हूँ, सर। है ना। फर्स्ट आंसर फर्स्ट का आंसर आ गया, वेरी गुड। सेकंड बता देता हूँ। देखो बेटा ध्यान से समझना, एक तो तरीका है कि इसका होल क्यूब निकालो, इसका होल क्यूब निकालो, कुछ टर्म्स कैंसिल होंगे, जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करो, बाकी को आगे बढ़ाओ। नहीं, मैं नहीं करूंगा ऐसे, मुझे नहीं समझ में आता ऐसे, मैं नहीं कर सकता ऐसे भाई, और मैं ये चाहता हूं कि आप लोग भी ऐसे ना करो। अजीब टीचर है यार, क्या बोल रहा है, मत करो तो क्या हमें मार्क्स नहीं मिलेंगे। मैंने ये तो नहीं बोला कि मार्क्स नहीं मिलेंगे, मार्क्स मिलेंगे, लेकिन आसानी से सवाल करो ना, बहुत चीजें हैं करने के लिए। देखो जो बता रहा हूं उसको समझना ध्यान से। सर मैं थोड़ी देर के लिए x प्लस 2 अपॉन एक्स को मैंने a मान लिया, और ये जो x माइनस 2 अपॉन एक्स है इसको मैंने b मान लिया। सुनना ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं। थोड़ी देर के लिए मैंने x प्लस 2 अपॉन एक्स को a मान लिया, x माइनस 2 अपॉन एक्स को b मान लिया, तो सर ये मेरे पास क्या लिखा हुआ है, a क्यूब प्लस b Cube plus क्यूब। B cube. इसका फॉर्मूला मुझे पता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब वैल्यूज पता चल गई, अब फॉर्मूला पता चल गया, वैल्यूज पुट करते जाओ। देखो मैं डायरेक्टली वैल्यूज पुट कर रहा हूं, इट विल बी x प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस ऑफ x माइनस 2 अपॉन एक्स, a प्लस बी, इसको a माना था, इसको b माना था, मल्टीप्लाइड बाई a स्क्वायर इज x स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ab मीन्स 2, a स्क्वायर, a का होल स्क्वायर मतलब इसका होल स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2 अपॉन एक्स, दैट विल बी इक्वल टू 4। ठीक है, ये हो गया a स्क्वायर प्लस ए बी मतलब दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 4 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 4। कौन कौन से टर्म्स कैंसिल हो गए भाई, पहले तो ये वाला टर्म कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे प्लस मिला 4 माइनस 4 2x प्लस 4 माइनस 4 कैंसिल हो गए, प्लस 4x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक है, फाइनली मेरे पास बचा, आंसर विल बी 2x क्यूब प्लस 24 बाय x। एक मिनट, फाइनली मेरे पास बचा 3x स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर, 3x स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर। कहीं कुछ गलती तो नहीं हुई है भाई, एक बार चेक कर लो, सारी चीजें ठीक है ना। सर एक मिनट बेटा, एक मिनट बेटा, ए Yes, sir. स्क्वायर प्लस ए बी, a माइनस b यस सर। कहाँ पे माइनस होगा,
ए स्क्वायर, एक मिनट, सर फॉर्मूला ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ओके ठीक है, सर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, हाँ नहीं सर ठीक, सही तो है यार, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर नहीं सर माइनस वो ए क्यूब प्लस, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है ना, ये फॉर्मूला होगा, दिस विल बी द फॉर्मूला, हाँ सर ठीक है, दिस विल बी माय फॉर्मूला। तो लेट मी राइट इट अगेन, कंफ्यूजन हो गया थोड़ा सा, घिचपिच हो गया। सो दिस इज ए, दिस इज बी, सो इट विल बी ए प्लस बी, दैट इज एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस ऑफ एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर, that is x square plus 4 upon x square plus 4 a square minus of ab minus of x square plus 4 upon x square, a square minus ab plus b square, that is x square plus 4 upon x square minus of 4। ठीक है, अब देखो क्या क्या कैंसिल होता है भाई, ये 4 और प्लस 4 माइनस 4 कैंसिल हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। सो दिस विल बी इक्वल टू 2x मल्टीप्लाइड बाई, अब यहाँ क्या बचा, 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर, दैट इज 12 अपॉन एक्स स्क्वायर, और बचा यहाँ पे एक्स स्क्वायर। सो फाइनली इट विल बी 24 upon x plus 2x cube. This will be your answer. 2x cube plus 24 upon x. Is this the answer? Yes, sir. 2x cube plus 24 upon Yes, x sir. Same answer. will be the answer of your question. ठीक है, तो दोनों तरीके हैं, या तो इसको एक्सपेंड कर दो, जो भी टर्म्स है कैंसिल कर दो, या इसको a मान लो, इसको b मान लो। यहाँ से ये बात है कि यहाँ से आपका क्वेश्चन दो लाइनों में सॉल्व हो जाएगा, वहां से भी 2 लाइन में सॉल्व होगा, माथा पच्ची ज्यादा करनी पड़ेगी। तो आई विल सजेस्ट यू गो बाय दिस मेथड, बट इट्स योर चॉइस, वट एवर मेथड यू वांट यू कैन अप्लाई। नेक्स्ट, आई एम नॉट सॉल्विंग दिस क्वेश्चंस, ठीक है, a माइनस बी होल क्यूब a प्लस बी होल क्यूब के बेसिस पे सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट, इफ x माइनस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 5, यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब। So we have solved these type of questions before. We have also. solved these type of questions. Yes, I remember. But that was different. This is different. That was different. This is different. Sir, answer is coming 140. This question, please. Sir, 140 is the answer. Okay. Again, I have something new for you. Again, I am having something new for you. A cube minus b cube को use करेंगे. This will be equal to x minus 1 by x multiplied by x square plus 1 upon x square minus 1. x into 1 by x किया तो x square plus 1 upon x square plus 1. a cube minus b cube क्या होता है, a minus b multiplied by a square plus ab plus b square. अब समझ, a square plus ab plus b square. अब समस्या ये है, like a minus b the whole cube. एक मिनट बेटा, एक मिनट, आई विल टेल यू दैट आल्सो। अब बेटा समस्या ये है कि मुझे एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू नहीं पता है। पता है? आप बोल रहे हो नहीं पता है, मैं बोल रहा हूं पता है। कैसे? देखो पता है। देखो, x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2। सो दिस आई कैन राइट एज एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2। पुट कर दो x माइनस 1 अपॉन एक्स होल स्क्वायर प्लस 2, पुट कर दो, you will get your answer. x minus 1 by x is 5 multiplied by x minus 1 by x का whole square is 5 square plus 2 तो यहाँ से आया प्लस 1 मेरे पास था, 25 plus 3 is 28, 28 into 5 is equal to 140. You can do it by a minus b whole cube also. The result will be the same. I told you last turn also that a minus b whole cube, that this a cube minus b cube is just an special case of a minus b whole cube. That's it.
It's just a special case of a minus b whole cube. You can do it by both the ways. Not a big deal. Not a big deal. चलिए आगे बढ़ते हैं. Now I am not going to solve these questions. A plus b into a square minus ab plus b square दिख रहा है मेरे को. That is, this is equal to a cube plus b cube. इसका आंसर हो जाएगा 64x cube plus 27y cube. This is nothing but a plus b multiplied by a square minus ab plus b square. सर हाँ जी बोलिए. सर हम x को a सर इसमें x को a मान सकते हैं और y को b मान सकते हैं, लिख x को सकते हैं a ना मत सर? मानो, x को a मत मानो, 4x को a मानो. x को a मत मानो, 4x को a मानोगे तभी क्वेश्चन होगा. x को a मानोगे तो नहीं होगा. x को a मानोगे तो नथिंग विल हैपन. 4x को a मानोगे देन ओनली यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन, राइट? x को a मानोगे देन ओनली यू विल बी. हाँ बोलिए But बोलिए. we can directly use identities and solve. Yes, you can direct. This is the identity only, man. This is what is the identity only, right? Yes. ये जो मैंने ये जो किया वो तो आइडेंटिटी है ना बेटा. Yes. Sir, second will be 125x The cube second minus will be 1. Whatever it is, I'm not doing that. Okay, ये आप लोग कर लोगे. हाँ, now this is interesting. चलिए इसका आंसर बताइए. What will be the product of the following expression? You have 1 minute for this. Sir, we can assume 3x as a, 4y as b, and 5z as c. Yes, you can take 3x as a, 4y as b, and 5z as minus 4y as b and 5z as c. देखो भाई इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखोगे तो आपको क्या दिखेगा. दिस इज नथिंग बट ओहो व्हाट हैपनिंग. एक मिनट वेट करो यार. पेन स्टॉप ऑल Sir, ऑफ. it will be a cube plus b cube plus c cube minus 3abc. देखो यहाँ पे क्या मिल रहा है. अगर आप इस फॉर्मूले को देखो, इस फॉर्मूले को याद करो. ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc was equal to a plus b plus c multiplied by a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus ca. ठीक है सर. अब यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे कंपेयर करूँ मैं तो आई कैन टेक a इज इक्वल टू 3x, b इज इक्वल टू माइनस 4y एंड c इज इक्वल टू 5z. मेरा जो एक्सप्रेशन होना चाहिए, माई एक्सप्रेशन शुड बी, इफ माई एक्सप्रेशन इज सेम देन इट्स ओके. माई एक्सप्रेशन शुड बी 3x माइनस 4y प्लस 5z. यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आएगी. मल्टीप्लाइड बाई 9x स्क्वायर plus 16y square plus 25z square minus ab, that is minus 12xy, minus of minus 12xy, that is 12xy, minus bc, that is minus of minus 20yz, that is plus 20yz, minus ca means minus 15zx, minus 15zx. I'm getting the same expression here. So the value of this expression will be 27x cube minus a cube plus b cube 64y cube plus 125z cube minus of 3 into minus 4 is minus 12, minus 12 into 5 is minus 60, minus 60 xyz. So the final value will be 27x cube minus 64y cube plus 125z cube plus 180 xyz. This will be the Yes, sir. final value of my expression. Similarly, you can also solve the second one. I'm not solving the second one. I'm moving ahead.
If a plus b plus c equal to 9 and ab plus bc plus ca is equal to 26, you have to find the value of this. Interesting. Interesting. देखते हैं कौन करके बताता है. I'm waiting. Sir, may I say the answer? वेट कर यार, पहले मैं कंप्लीट कर दूं फिर आंसर तुम ही बताना है ना. यू विल टेल द आंसर बट आई हैव टू टेल द सॉल्यूशन. चलो देखो भाई, देखो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 9 दिया हुआ है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 26 दिया हुआ है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की वैल्यू निकालनी. यार क्या बड़ा टफ टास्क है यार. देखो कैसे निकालेंगे. देखो भाई, सबसे पहले सुनो जो समझाने जा रहा हूं. ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो एक्सप्रेशन, ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू होती है, दिस इज नथिंग बट a प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाइड बाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए. यही होती है वैल्यू, और तो कुछ नहीं होता. सर Yes, ठीक sir. है, ये तो वैल्यू होती है, लेकिन आपको क्या लगता है, हम छोटे छोटे बच्चे हैं तो आप कुछ भी हमें समझा देंगे. हाउ इट इज पॉसिबल टू कैलकुलेट सर. यहाँ तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है. चलो ए प्लस बी प्लस, एक मिनट रुक जाओ यार, बोलने तो दो. इट इज नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट सर. यहाँ तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसका मतलब द क्वेश्चन शुड बी रॉन्ग. हाफ मोस्ट ऑफ यू मस्ट हैव थॉट लाइक दिस कि ये क्वेश्चन गलत है, ये सर को पता नहीं क्या हो गया है, कहीं कहीं से क्वेश्चन उठा के ले आते हैं उल्टे सीधे सवाल. क्वेश्चन Sir, we गलत है will भाई. square both sides. स्क्वायर बोथ द साइड्स, क्या बात करते हो. Yes, sir. किसको स्क्वायर करोगे. Sir, a plus b plus c and 9. Yes, sir. Sir, then we will get a square plus b square plus c square plus 2 into Why we 26. Then CA the plus value of B. a अच्छा, square ये plus बोल b रहा है. square plus c square will be ठीक है 26. ठीक है ठीक है, सुनो यार सुनो यार सुनो यार, तुम लोग यार क्या क्या करते रहते हो. दोनों को स्क्वायर कर दोगे, ये करोगे वो करोगे. आई हैव सम अनदर मेथड, जस्ट वेट एंड वॉच. सर एक आइडेंटिटी मैंने आप लोगों को बताई थी, डेट वाज a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर. कुछ बताया था ऐसे, याद आ रहा है. नहीं याद आ रहा है तो Yes. देखो. Sir, प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर वाज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca. क्या यहां से मैं कह सकता हूं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab माइनस ऑफ 2bc माइनस ऑफ 2ca. से यस और नो. आई जस्ट वांट टू नो यस और नो. मैंने क्या किया, Yes. इस पूरे एक्सप्रेशन Yes. को लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आ गया. अब मैं क्या करूंगा, ये जो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू है इसे यहां पुट कर दूंगा. सो दिस विल बी a प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाइड बाई a स्क्वायर प्लस multiplied by a plus b plus c whole square minus of 2ab minus 2bc minus 2ca or minus of ab minus bc sir, minus. but you can directly put the values. I no? can Because they directly have put already the given the values. value I of can see, AB I can plus BC directly plus- put the values. I don't have any issue. But what if it didn't struck me? I can put the values, no problem. यहाँ से square करके put कर सकते हैं. Basically, finally, you will get the same thing only. So this will be a plus b plus c की value 9 है. 9 multiplied by 9 square minus of 3 times of ab plus bc plus ca की value 26 है. So this will be 9 multiplied by 81 minus 78, which is equal to 27. So the correct answer of this question will be 27. I hope you are also getting 27. Yes, sir, 27. Sir, but I did what he was saying. I found out a square plus b square is equal a square plus b square plus c square.
Okay. Then what happened? Yes, sir. So then Then this I is the got it value. as 29 and then I solved it accordingly. Okay. 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 Yes, sir. Okay. Next. हाँ भाई, यहाँ आ जाओ. This is an interesting question. Let me see who will solve it first. Your time starts now. कुछ नहीं करना यार, पहले एक्सप्रेशन का क्यूब करो, दूसरे एक्सप्रेशन का क्यूब करो, तीसरे एक्सप्रेशन का क्यूब करो, तीनों को ऐड करो. नीचे क्या दिया हुआ है, तीनों एक्सप्रेशन के क्यूब को एक्सपेंड करके ऐड करो, बाद में कैंसिल करो, आंसर मिल जाएगा. और उसके बाद अपने सिर को जो सामने दीवार है उस पे जाके पटक देना. क्योंकि इस क्वेश्चन को करने के बाद जिस मेथड से मैंने आपको बताया, उस मेथड से ये क्वेश्चन या तो आपसे सॉल्व ही नहीं होगा, अगर सॉल्व हो गया तो एग्जाम में आप और किसी सवाल को करने लायक नहीं बचोगे. इसीलिए एक बात याद रखना मेरी हमेशा, जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है. चार्ली चैपलिन वॉज द मोस्ट फेमस कॉमेडियन, लेकिन ऐसा बोलते हैं कि ही वॉज द मोस्ट सैडेस्ट पर्सन. बहुत दुखी था वो अपनी रियल लाइफ में, लेकिन रियल लाइफ में वो बहुत ही ज्यादा he was the most famous comedian. Anyways, we are not discussing Charlie Chaplin, we are discussing this question. तो सर कैसे करें फिर? आपने तो एक मेथड बताया और फिर खुद ही मेथड बताते, खुद ही बोलते कि ऐसे मत करो, तो क्या करें सर? छोड़ दे? छोड़ना कुछ नहीं है, याद रखना, कुछ भी नहीं छोड़ना Sir, है you मेरी. can take. रुको, बताने दो. देखो इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखो. ट्राई टू हैव ए कन्वर्सेशन विद दिस क्वेश्चन. अगर थोड़ी देर के लिए, अब जो पूछ रहा हूं उसका जवाब देना, अगर थोड़ी देर के लिए, अरे यार, what happened to my pen today? Just wait, it has gone crazy. अगर थोड़ी देर के लिए इसको मैंने x मान लिया, इसको मैंने y मान लिया, इसको मैंने z मान लिया, तो बताना बेटा जरा x प्लस वाई प्लस z की वैल्यू क्या है? अगर मैंने थोड़ी देर के लिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को x माना है, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को y माना है, और सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को z माना है, तो कैन यू टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई प्लस z? Sir, 0. जीरो. Zero. यही तो सुनना था. जीरो इज द Sir, I was going to बिगेस्ट say that डिस्कवरी. जीरो. तो सर अगर x प्लस वाई प्लस जेड जीरो होता है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू क्या आई थी? उस दिन डिस्कस किया था. इफ Yes, x sir. प्लस जीरो, if x plus y plus z is equal to 0, then what was the value of x cube plus y cube plus z cube? याद करो, उस दिन बताया था. सर 3xyz आएगा. 3xyz आएगा. यहाँ पे लिखो The same only I used. 3xyz. डिनोमिनेटर में लिखो. डिनोमिनेटर में इसको चलो थोड़ी देर के लिए अल्फा मान लो, इसको बीटा मान लो, Sir, इसको can we एक turn the मिनट, denominator also to 0? एक मिनट बेटा, वही बता रहा हूं. इसको थोड़ी देर के लिए अल्फा मान लो, इसको बीटा मान लो, इसको गामा मान लो. अब जरा ध्यान से देखो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू क्या आ रही है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा? 0. वेरी गुड. 0. यहां पे हो गया 3 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा गामा. पहले तो ये 3 को 3 से कैंसिल कर दो. अब x और y की जो वैल्यू मानी थी उसको पुट कर दीजिए. अब यहां पे कॉमन सेंस लगाइए. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो सर मुझे नहीं अच्छा लगता ऐसे, मुझे डिग्री 1 ही अच्छी लगती है. तो दिस विल बी a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई a माइनस बी. y विल बी b प्लस सी मल्टीप्लाइड बाई b माइनस सी. z विल बी c Sir, प्लस use the exact same method. multiplied by c minus a divided by a minus b multiplied by b minus c multiplied by c minus a. कैंसिल करें? चलो रेड कलर का यूज करते हैं कैंसिल करने के लिए. आप लोग इतना कलर डिफरेंट कलर्स मत यूज करना. आई एम यूजिंग ऑन ए डिजिटल बोर्ड, तो मेरे पास है
a माइनस बी को a माइनस बी से कैंसिल किया, b माइनस सी को b माइनस सी से कैंसिल किया, c माइनस ए को c माइनस ए से कैंसिल किया। आंसर क्या मिला? a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय b प्लस सी मल्टीप्लाइड बाय c प्लस ए। बात समझ में आ गई मेरे देश के भावी नागरिकों? से यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. गुड। 5 मिनट है, एक सवाल और करेंगे। अगर टाइम ज्यादा लग गया तो जिनको खाना पीना मूड होना हो वो जा सकते हैं, दे कैन वॉच द रिकॉर्डिंग्स लेटर, बट आई वांट टू सॉल्व वन मोर क्वेश्चन प्लीज। ये तो आसान सा सवाल है यार। चलो इस क्वेश्चन को आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस। If you observe carefully, here also we have same thing. Now see, there is a glitch here. There is a glitch here. आप इसको क्वेश्चन बोल रहा है प्रूव So it दैट will be equal to LHS into RHS. LHS will be equal to RHS, लेकिन क्वेश्चन में लिखा है प्रूव दैट, तो आपको इसे ठीक से लिखना पड़ेगा। क्यों आपने ऐसा लिखा? मुझे पता है ऐसा होता है, लेकिन अगर प्रॉपर रीजनिंग नहीं दोगे, योर एग्जामिनर विल कट योर मार्क्स। कैसे लिखेंगे? लेट सर, लेट Sir, we can take x minus y as a minus y minus z as b and z minus x as c. very good, and c is equal to z minus x. Now according to the question, now not according to the question, a plus b plus c is equal to x minus y plus y minus z plus z minus x, which is equal to 0. Now if a plus b plus c equal to 0, we know that if लिखना पड़ेगा इसके आगे, if a plus b plus c equal to 0, then a cube plus b cube plus c cube will be equal to 3 times of abc, which is equal to 3 times of x minus y, y minus z, Yes, sir. z minus x. Proved. नीचे hence proved लिख दो, hence proved. खत्म। क्या करना है? लेकिन हाँ, लिखना जरूरी है यहाँ पे। The easiest of all. क्या हुआ? कुछ पूछना है? नहीं sir, this question was the easiest of all. सारे सवाल आसान होते हैं बेटा। कोई All questions are. कौन सा सवाल हार्ड है भाई, बताओ जरा। Sir, कोई भी नहीं, सारी easy है. नहीं, आप नहीं। जिन्होंने बोला दिस वाज द इजीएस्ट ऑफ ऑल, बेटा कौन सा सवाल हार्ड है बताइए। दिस क्वेश्चन इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट। दिस क्वेश्चन इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट। व्हाई? Few years back I was preparing for a government exam. तो what happened, इस टाइप के क्वेश्चंस आए एंड मुझे फॉर्मूला याद नहीं था। मुझे ये फॉर्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब वाला फॉर्मूला याद नहीं था। आई टुक हाफ एन आवर टू अराइव एट द रिजल्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। मैंने सबसे पहले 28 का क्यूब निकाला, फिर 50 का क्यूब निकाला, फिर 78 का क्यूब निकाला, फिर 28 के क्यूब को और 50 के क्यूब को ऐड किया, फिर 78 के क्यूब को सब्ट्रैक्ट किया, फिर जो मेरा रिजल्ट आया वो मेरा रिजल्ट आया। तो डोंट ट्राई टू बी ANMM, Sir, answer is but try to be something else. Yes, what are you saying? बोलिए sir, बोलिए। answer is coming minus 327600. जो भी आंसर आएगा उसकी बात करेंगे, 3,27,000. जो भी आंसर आएगा उसकी बात करेंगे, लेकिन डोंट ट्राई टू बी व्हाट आई वाज फ्यू इयर्स एगो। मैंने क्या गलती की? मैंने सीधे सीधे क्यूब कर दिया। मेरे दिमाग में, मेरे छोटे से दिमाग में एक बात नहीं घुसी। क्या बात नहीं घुसी? कि सर अगर इसको ए मानता हूं, इसको बी मानता हूं, इसको सी मानता हूं, मतलब इसको मैंने बी माना है ना, -78 को बी माना है, तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, वेयर a इज इक्वल टू 28, b इज इक्वल टू -78 एंड c इज इक्वल टू 50। सो सर a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे हैं? Sir, it will be 0. एक तो वही तो बोल रहा हूँ यार, एक मिनट रुको यार, क्वेश्चन एक्सप्लेन क्या करूँ तब मत बोला करो, जो डाउट हो बाद में पूछा करो। तो यहाँ पे मुझे मिला a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। सो फाइनली व्हाट आई एम हैविंग 28 क्यूब प्लस ऑफ -78 होल क्यूब, किसी भी निगेटिव नंबर का क्यूब निगेटिव होता है, प्लस ऑफ 50 क्यूब विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ 28
multiplied by minus 78 multiplied by 50. 3 times of A into B into C. Value निकाल लो, जो भी आंसर आएगा, that will be your answer. I'm not solving that. But the point that was The last few important. questions had some idea of a cube plus b cube plus c cube is equal to 3ab. But the point was you have to learn this. You have to learn to apply this. Okay. One more question. देखते हैं कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे. नहीं कर पाएंगे. You have to solve, check your progress. That is your homework. Next class mein I will be discussing the last topic of this chapter, that is factorization. Now, since we have almost completed 66% of the chapter, 66 to 70% of the chapter, please start solving the exercises. Leave the questions of factorization. Please start solving the exercises. I will immediately start the exercise discussion as soon as I complete this factorization chapter. Maybe in the next class also, I will start this exercise discussion. So don't give me excuse at that time कि sir नहीं किया था. ठीक है? So it was all about today. Bye bye everyone. Take care and have a nice time.